Let us continue from question number 11. Exercise 8B, question number 11. See, there are two lines, PQ and RS. These are the two lines, PQ and RS, okay? And there is a line cutting them, that is BD. And from this line, we have another small line called CN. This angle is X, and this angle is 70 degrees. Okay. This angle here is 36 degrees. So दो angles आपको दिए हैं. PQ is parallel to RS. They have said this. PQ is parallel to RS. It is said in the question. We have to find the value of X. Okay. क्या कर सकते हैं अभी इसमें? What can we do here? सक्षम में yes सक्षम. Just a second, can't hear you. Yes, please. Yes, Saksham. Hello. Yes, sir. Sir, 70 degree. Sir, 70 degree equals to angle D due to alternate angles. Yes, sir. So what can we do here? These two lines are parallel to each other. Okay. So अगर ये दो lines parallel है, तो we can take this as alternate angle. ये Z बन रहा है. Correct. ये Z बन रहा है, तो which angle will be 70 degrees? Sir, angle D. This angle here Yes. will be Yes. 70 degrees. Okay, correct. ठीक है. Okay. So I will write here that angle PBC is equal to angle CBN. Reason will be alternate angles. Reason will be alternate angles. Yes, Krishna. Sir, we could take linear when there is 70 degree here. So we could take linear pair and then we could find the value of X. We can do that also. कैसे मतलब आप कह रहे हो कि we will find this angle first. No. Okay. फिर क्या करेंगे? Then we will take corresponding angles. नहीं. Corresponding कैसे होगा? नहीं. कौन से एंगल्स corresponding लोगे? इसको किसके साथ corresponding लोगे? X के साथ. नहीं corresponding ऐसे नहीं होता. Corresponding ऐसे होता है. ये एंगल corresponding है तो इसके ऊपर वाला ये एंगल corresponding है, या फिर ये और ये corresponding होता है. ये नहीं होगा. तो ये आपको 70 मिला. Now see this small triangle. Observe this small triangle. इसमें एक एंगल 70 है, एक 34 है, तो यू कैन फाइंड द थर्ड एंगल. ठीक है, मतलब आप ये वाला एंगल ढूंढ सकते हो, दिस एंगल. ओके, ढूंढ लो ये एंगल, फाइंड इट.
Tell me the value of this angle. Send me the answer in the chat box. $74. Are you getting the answer is 74? Okay. So answer is 74 degrees. But this is not the final answer. हमें ढूंढना क्या था यहाँ पे? X ढूंढना है. अब अगर ये 74 है, अगर ये 74 है, तो फिर X क्या होगा? X कैसे मिलेगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यस पक्षाल. Sir, linear pair. Linear pair. Very good. This is linear pair. So find X now with linear pair. X plus 74 equals 180. Find X. So X is 180 minus 74, that is 104 degrees. This is your answer. 106 degrees. Okay. Chalo, very good. Next question is also very easy. Try to solve it on your own. Okay, so pay attention. Angle ADC is given as 58 degrees.
Okay, so here in the triangle ACD, is it isosceles triangle? Triangle ACD, isosceles है, AD और CD side equal है, ठीक है, means AD and CD is equal. If AD and CD is equal, which two angles will be equal here? Angle A and angle C, these two angles will be equal. Okay, so हम इन दोनों angles का नाम लिखता हूं मैं, angle CAD will be equal to angle ACD will be equal to X. Reason, isosceles triangle. Angles are equal. और मैं दोनों को x ले लेता हूँ, इसको भी x और इसको भी x, ठीक है. तो क्या होगा, x plus 58 will become 180. Find the value of x now. Okay, I can see. Send me your answers in the chat box. I'll check your answers. So you should get the answer as 61 degrees. Saksham is correct. Naitik correct. Jasmine correct. Okay. So x क्या मिला 61, ठीक है. अब मुझे ढूंढना क्या है? What do I have to find here in this one? I have to find angle y. मतलब y, value of variable y. अब y ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? Any idea? Can anyone tell what can we do here to find y? Yes, Ukshal. So we can use corresponding angles. Corresponding angles. किसको corresponding angles दूंगा? Angle y and Yes, कोई और बताओ क्या कर सकते हैं? Yes, दृष्टि. Yes, जसमीन. नहीं मिल रहा किसी को? चलो मैं हिंट देता हूँ आपको. You have to use this angle. ये एंगल x है. x की वैल्यू आपको मिली हुई है. You know the value of x is 61. Okay, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 61. Okay. अब इसको आपको यूज करना है. Yes, Krishna. Sir, we will use co-interior angles. One. Interior. कैसे को इंटीरियर यूज करूँ? Make your answer is wrong. See, आपको corresponding angles यूज करना है यहाँ पे. ये 61 है, तो ये 61 है, तो ये एंगल भी 61 होगा, because these are corresponding angles. ठीक है, इसको समझो एंगल F नाम देते हैं. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू एंगल ACD. रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये 61 है. अब यहाँ पे ऑल्टरनेट यूज कर सकता हूँ मैं. ऑल्टरनेट, ये Z बन जाएगा ऐसे. अगर ऑल्टरनेट यूज करूंगा तो विच एंगल विल बी इक्वल टू 61? कौन सा एंगल सेम होगा? y नहीं, ये 61 है तो ये वाला एंगल सेम होगा. करेक्ट, ऐसा होता है ना. ऑल्टरनेट कैसे होता है? दीज टू एंगल्स आर सेम. ओके, सो मुझे क्या मिला? ये जो एंगल है, आई विल गेट दिस एज 61. ओके, फिर 61 और y, ये लीनियर पेयर हुआ. 61 एंड y, दे लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन. लीनियर पेयर. ओके, तो आपको जाके y मिलेगा. समझे? यस पक्षाल, एनी डाउट?
No, sir. ओके, सो आपको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट स्टेप में एंगल एफ इक्वल्स 61 डिग्रीज, फिर आप नेक्स्ट पे लिख दो 61 प्लस वाई इक्वल्स 180, सो वाई इक्वल्स 119 डिग्रीज आई थिंक। ये ऑल्टरनेट एंगल्स का स्टेप नहीं लिखा ना हमने, इसके बाद एक और स्टेप लिखो आफ्टर दिस स्टेप। इस एंगल का नाम क्या देंगे, लेकिन यू डोंट हैव वेरिएबल्स। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं एक्स वाई। एंगल एक्स ई एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया बिकॉज नाम नहीं था तो मैं ट्राइंगल को नाम नहीं। अब इसको और भी तरीके से फाइंड कर सकते थे, नॉट नेसेसरी यही एक तरीका है। आप चाहिए तो ये एंगल ई भी फाइंड कर सकते थे। एंगल ई कैसे फाइंड कर सकते थे आप, ये 61 और ई का क्या रिलेशन है? यस बख्शाल। Sir, co-interior angle. वेरी गुड। 61 और ई ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। देखो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अगर ऐसे लाइन है तो ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, इनको हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो दिस 61 एंड ई आर को इंटीरियर एंगल्स जिनका टोटल 180 होता है। तो क्या होता, आपको ये ई जो है यहाँ पे जो ई लिखा है, आपको इसकी वैल्यू ई की वैल्यू मिलती 119, और फिर ये और ये एंगल सेम होता। ये कौन सा प्रॉपर्टी होती है, ये क्यों सेम होता दिस एंगल, ये बताएगा मुझे, ये एंगल सेम क्यों है? यस मेघ। सर एक्सटीरियर एंगल्स। नो नॉट एक्सटीरियर एंगल्स। एक प्रॉपर्टी है ऐसी, चेक करो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट। यस, ये वर्टिकली ऑपोजिट होता है। तो ये अगर 119 है तो ये वाला भी 119 मिल जाता आपको वर्टिकली ऑपोजिट से। ओके, तो ये आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती 60 वाली ऑल्टरनेट की। तो ऐसे भी कर सकते थे, बोथ आर करेक्ट। ओके, आई होप यू हैव कॉपीड द क्वेश्चंस। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ये सब जो रीजंस है यहाँ पे, दिस corresponding angle, then alternate angles, all these are important. ठीक है, we can come to the next sum. Question number 13. Draw a rough figure quickly. Angle C is given as 80 degrees. This full angle here, I think, is given as 120 degrees. ये side और ये side same है. This full is given as 110 degrees. This is E and A. Here is my diagram, and I need to find तीन चीजें find करनी है मुझे. Angle BAE, angle CBE, and angle ADB. I need to find these three angles. Easily हो जाएगा, कुछ ज्यादा difficult नहीं है. Parallel lines दिया है, उसका ध्यान देना. ये parallel lines है, इसका ध्यान देना, ये यूज होगा. मैं इसको हाईलाइट करके ही रखता हूँ पैरेलल लाइंस को. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये वाले ट्राइंगल से. इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये. ठीक है, दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. BC और CD सेम है, BC इक्वल्स CD. आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 30. BC इक्वल्स CD. तो अभी कौन से दो एंगल सेम होंगे,
BD is the base. So angle CBD will be equal to angle CDB. Region will be isosceles triangle. ठीक है, तो इन दोनों को मैं x ले लेता हूँ, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ये 1/110 पूरा है, पूरा पूरा नहीं चाहिए हमें, ठीक है, 1/110 पूरा है। तो इन दोनों को मैंने x लिया, तो क्या होगा x plus 80 equals 180. So 2x equals 100, x equals 50 degrees. सो दिस एंगल हियर, ये जो छोटा वाला एंगल है, ये मुझे मिल गया 50 डिग्रीज। यहाँ पे भी ये एंगल मिल गया 50 डिग्रीज। ओके, अच्छा, नाउ टेल मी अबाउट दिस। अब ये तो 50 एक चीज मिली है, इसको हम यूज करेंगे, बट ये दो लाइंस पैरेलल है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल का क्या रिलेशन होगा? नहीं, करस्पॉन्डिंग तो ये दोनों होते, करस्पॉन्डिंग विल बी दिस एंड दिस, ऐसे ऊपर नीचे, दीज आर करस्पॉन्डिंग। ये जो अंदर बन रहा है पैरेलल लाइंस के, दे आर कॉल्ड एज को इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल का क्या होता है? इक्वल होते हैं या 180 होता है? 180 होता है को इंटीरियर एंगल्स में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे BE इज पैरेलल टू CD, ठीक है। सो एंगल BED प्लस एंगल CDE इक्वल्स 180, रीजन बीइंग को इंटीरियर एंगल्स। सो आपको CDE पता है, ये पूरा एंगल पता है आपको, 1/110 है, 110 है, सॉरी। सो आपको BED मिल जाएगा। कितना मिलेगा BED? सेवेंटी डिग्रीज। समझ रहे हैं मैंने क्या किया? ये दिस एंगल आई गॉट इट एज 70 डिग्रीज। सारे एंगल्स फाइंड करने हैं इस फिगर में, जितने भी एंगल्स हैं हमें सब फाइंड करने हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो 50 है ये इतना एंगल है, तो ये एंगल मिल सकता है मुझे इतना, रिमेनिंग पार्ट कैसे मिल सकता है? ये नॉर्मल, ये इतना 50 है, और तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 110 माइनस 50, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल BDE इक्वल्स 110 माइनस 50 डिग्रीज, दैट इज 60 डिग्रीज। समझा ना? ये चीज मैंने क्या की, यहाँ पे हमें हर एक एंगल ढूंढना है इस क्वेश्चन में, हर एक एंगल। तो अब मुझे ये 50 है, इसको मैं 1/110 को भी हटा देता हूँ, इट विल कंफ्यूज अस। 1/110 को हटा देता हूँ, ये इतना पार्ट 50 है और ये रिमेनिंग पार्ट 60 है, ओके। अब ये 70 है, ये 60 है, तो कैन यू फाइंड दिस एंगल, थर्ड वन? ये जो ट्राइंगल है BED ट्राइंगल, 70 and 60 is known. Can you find this angle? Let's say this is Y. So in triangle BED, Y plus 70 plus 60 equals 180. Tell me the value of this angle.
सो y इज 50, मतलब y मतलब इस एंगल का नाम लिख देते हैं, एंगल EBD इज 50 डिग्रीज लिख देते हैं यहाँ पे। मैं रेड से लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये एंगल भी 50 डिग्रीज मिल गया। ये 120 क्या है? 120 ये पूरा एंगल था, पूरा। अब ये फर्स्ट पार्ट 50 है, सेकेंड पार्ट 50 है, तो क्या आप ये थर्ड पार्ट ढूंढ सकते हो? वी कैन फाइंड दिस थर्ड पार्ट इजीली। 120 में से दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, तो थर्ड पार्ट का नाम क्या है एंगल का? ये जैसे बताओ, नाम क्या है इस एंगल का? नहीं, इस एंगल का नाम पूछ रहा हूँ मैं, नाम, ये एंगल का नाम बताओ। जो एंगल होता है वो अल्फाबेट बीच में होना चाहिए। ABE, एंगल ABE मुझे कैसे मिलेगा? 120 माइनस 50 दैट इज 20 डिग्रीज। करेक्ट, ये समझ में आया? तो दिस एंगल इज 20 डिग्रीज। ओके, ये एंगल 20 मिला। क्या आप ये एंगल ढूंढ सकते हो? लीनियर पेयर से इजीली मिल जाएगा ना ये एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पता है तो ये मिल जाता है। टोटल इसका 180 होता है। ओके, सो आई कैन इजीली फाइंड यूजिंग लीनियर पेयर दिस एंगल। तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं, एंगल BEA प्लस 70 इक्वल्स 180। सो एंगल BEA इज 180 माइनस 70 दैट इज 110। सो ये मिला मुझे 110। क्या अब मैं एंगल A ढूंढ सकता हूँ? टोटल दो एंगल्स मिल गए ना, 20 और 110, तो तीसरा मिल जाएगा क्योंकि टोटल 180 होता है। ओके, सो आई विल राइट हियर इन ट्राइंगल ABE 20 प्लस 110 प्लस एंगल BAE नाम दो इसको, बस क्वेश्चन में वही दिया है। सो एंगल BAE विल बी 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्रीज। करेक्ट, वेरी गुड। BAE मिल गया 50। क्या क्या ढूंढना था हमें इसमें? आई गेस सभी मिल गया हमें, बिकॉज हमारे पास सारे वैल्यूज है, तो आई कैन इजीली, ये हमारा फर्स्ट था BAE, हमें मिल गया 50। और क्या पूछा है, सी द क्वेश्चन। और पूछा है CBE। CBE आप लोग बताओ मुझे, CBE क्या होगा? डायग्राम देख के खुद ढूंढो। बताओ CBE क्या होगा? नो मेग, सी प्रॉपरली। CBE एंगल को ट्रेस करो ना, आप लोग ट्रेस कैसे नहीं करते? किधर है CBE? ये है CBE, ये एंगल है। क्या है इसकी वैल्यू? एंगल मतलब ये एंगल इतना, तो ये 50 है, ये 50 है, तो 50 + 50 100 हुआ। क्या कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया मुझे। 120 तो ये पूरा था ना, ये पूरा 120 था। हमें तो सिर्फ CBE पूछा है, मतलब सिर्फ इतना पार्ट पूछा है, इतना, ये वाला पार्ट। तो CBE विल बी 50 + 50 दैट इज 100 डिग्रीज। ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। थर्ड क्या पूछा है? BDE। BDE तो हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है यहाँ पे। BDE मतलब ये वाला एंगल,
ये हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है। ओके, अली 120 नहीं 100 है। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। डन क्वेश्चन, एनी डाउट्स इन दिस? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। Okay, I hope all of you have copied it, so we can come to the next question. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही सिंपल है वैसे, अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। मैं डिस्कस कर देता हूँ, देखो एक बार। आई जस्ट डिस्कस, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। सी, ये दो साइड्स इक्वल है, BC एंड BD, these two sides are equal, BC और BD। अगर ये दोनों इक्वल है तो दिस एंड दिस एंगल विल बी सेम, तो ये मिल जाएगा 37, करेक्ट। ये दोनों 37 है तो यू कैन फाइंड दिस एंगल ऑल्सो, ये थर्ड एंगल मिल जाएगा। ये मिल गया तो लीनियर पेयर से ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है, ये एंगल मिल गया। अब इन दिस ट्राइंगल ये दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल सेम होंगे, तो जो ये मिला है वही यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, फिर दिस प्लस वाई, ये दोनों टिक मार्क प्लस वाई विल गिव यू 180। यू कैन इजीली फाइंड वाई। दिस बोथ प्लस वाई विल गिव यू 180। तो फर्स्ट, योर फर्स्ट स्टेप इज you will write about this 37 that this is equal, then you will find this angle, ये वाला एंगल फाइंड करोगे, फिर लीनियर पेयर से ये फाइंड करोगे, और फिर ये, ठीक है। करो, सॉल्व करो एवरीवन। Can you again explain this? सी, मैं बता रहा हूँ ना, पहले BC और BD सेम है,
तो ये 37 है तो ये भी 37 हुआ, ठीक है। तो एंगल बी डी सी इज 37। अब ये दोनों 37 है तो आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये थर्ड एंगल समझो एंगल सी बी डी प्लस बाकी दोनों 37 है इक्वल्स 180। तो फाइंड करो ये थर्ड एंगल क्या होगा। Thirty-seven will come twice. फिर आप लीनियर पेयर से ये वाला एंगल ढूंढो, एंगल ए बी डी। See what answer you get after linear pair. ये आपको 106 मिला तो you will get this as 74. अब ABD मिल गया. Now in this triangle, these two sides are equal. So angle A और B ये दोनों एंगल सेम होंगे. This becomes the base. उस एंगल A, I will write here angle ABD is equal to angle A. Reason being isosceles triangle. So angle A भी मिल गया 74 degrees. This will also be 74 degrees. अब ये दोनों 74 मिला, आप अब तक ये स्टेप पे हो शायद, ठीक है। फिर y ढूंढो टोटल 180 करके। फाइंड एंड सेंड मी द आंसर ऑन द चैट बॉक्स। When you will solve this, you will get the value of y as 32 degrees. Correct. 32. Very good. चलो, क्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो? मोर और लेस ज्यादातर सब में सब यही चीज रिपीट होगी अभी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज।
Question number 15. It's a very simple question. Question number 15. Diagram copy करने की जरूरत नहीं है. No need to copy the diagram because here you are not making any changes in the diagram. Diagram कौन से question में copy करना होता है? Where you are making changes in the figure. यहाँ पे if you are not making any changes, you don't need to draw the diagram. Okay, you can refer the diagram from the textbook itself. Okay, so दो angles आपको दिए हुए हैं A और B. One is 2x plus 25 and there is x plus 30. अब अगर ये x 5x minus 5 है ये एंगल, तो can you find this angle? इन दोनों का क्या रिलेशन होता है? This is nothing but linear pair, correct? So angle, इस एंगल का नाम क्या होगा? देखो एंगल के नाम भी आने चाहिए आपको. DCA ये एक एंगल है और ये ACB ये दूसरा एंगल है. समझ रहे हैं ना? This is ACB, okay? ये ACB एंगल है, ACB and this is DCA ये एंगल, ये दोनों एंगल्स हैं. So angle DCA plus angle ACB will be 180. अब DCA क्या है? 5x minus 5 plus angle ACB equals 180. इसको पूरा वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. 180 minus 5x plus 5. 180 plus 5 is 185 minus 5x. ये मिल गया ACB, ये वाला एंगल. साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे 185 minus 5x. अब तीनों एंगल पता चल गए. ये एक, ये दो, ये तीन. ट्राइंगल के तीनों एंगल पता चल गए. तो टोटल क्या होता है इनका? तीनों को प्लस करके टोटल इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्रीज. Angle A is x plus 30 degrees, angle B is 2x plus 25 degrees, and angle C is 185 minus 5x equals 180 degrees. Solve this, you will get x. X minus 5x is minus 2x. 30 plus 25, 55. 55 plus 185. Yes, Pakshal. Sir, I want to get the answer. What is the answer? 30. X is 30. और भी कुछ पूछा है? Sir, B is equal to B is 2x plus 25. तो x की वैल्यू 30 वहां पे पुट करो. sir 85. 85. Very good. This is your final answer. These two are your answers.
Question number 16. Let's start. See, here we have this diagram where there are 2 points Q and R. And आपको कुछ important information दी है यहाँ पे about QI and RI. क्या दिया है? QI and RI bisect the exterior angles RQT and QRS. RQT क्या होता है? एंगल RQT मतलब ये वाला एंगल जो है, ठीक है, और ये जो QI है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. QI मतलब ये वाली लाइन, और वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों इक्वल है. बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x. ये दोनों एंगल सेम है. ठीक है. सिमिलरली RI बाइसेक्ट्स एंगल QRS. QRS की तरह ये QRS ये एंगल है और RI ये लाइन है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में. ओके, सो इसको हम नाम दे देते हैं y. ओके, y नाम दे देते हैं. ठीक है. अच्छा, ये प्रूव दैट सम है. ओके, प्रूव दैट QIR इज 90 माइनस हाफ p. ओके, ठीक है, कर लेंगे प्रूव. अच्छा, दिस फुल एंगल ये पूरा लीनियर पेयर होगा, करेक्ट. ये इतना 2x है, x plus x 2x, करेक्ट. सो व्हाट विल दिस एंगल बी? ये पूरा 180 होता है ना, ठीक है. 180 में से ये 2x है इतना, तो ये रिमेनिंग क्या होगा? 180 माइनस 2x. 180 में से माइनस हो जाएगा ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कैसे मिलेगा? 180 में से माइनस करो 60, तो ये 120 होगा, करेक्ट. थोड़ा डायरेक्टली कर दिया मैंने, ज़्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस एंगल PQR आई विल राइट हियर फर्स्ट. पहले मैं ये कुछ जो हमने x और y लिया है उसको लिख देते हैं. तो एंगल TQI इक्वल्स एंगल RQI इक्वल्स x, एंगल QRI इक्वल्स एंगल SRI इक्वल्स y. ओके, फिर मैं लिखूंगा एंगल PQR इक्वल्स 180 माइनस 2x. और similarly tell me what will this angle be? This angle 180 minus 2y. Angle PRQ will be 180 minus 2y. Correct, make 180 minus 2y.
ओके, ठीक है. अब नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल पी क्यू आर. ये ट्राइंगल, इसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180. ठीक है. सो एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स 180. तो एंगल पी आर क्यू क्या दिया है? 180 माइनस 2x. एंगल पी आर क्यू क्या दिया है? 180 माइनस 2y इक्वल्स 180. सब कुछ राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया मैंने. I got angle P as 2x plus 2y minus 180. ये मिला मुझे एंगल P. ये आपको x मिला है, x माइनस नहीं है, प्लस है. सो एंगल P ये मिला है. ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको यूज करना है. ओके, दिस इज अ प्रूफ सम, तो इसको हमें यूज करना है. नाउ कम टू दिस ट्राइंगल क्यू आई आर. इसमें एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, और दिस इज द थर्ड एंगल क्यू आई आर. सो टोटल क्या होगा? एंगल क्यू आई आर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 180. सो एंगल क्यू आई आर क्या मिलेगा? 180 माइनस एक्स माइनस वाई. Now you have to prove that angle QIR equals 90 minus half angle P. ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करके देखते हैं. इसको इक्वेशन 1 नाम दो और इसे इक्वेशन 2 नाम दो. एंगल QIR इक्वल्स 90 माइनस हाफ. एंगल P की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 2y माइनस 180. ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे. क्या इसमें से 2 कॉमन आ सकता है? फ्रॉम दिस 3 टर्म्स 2 कॉमन आ सकता है इसमें से. ठीक है, तो लेट्स टेक 2 कॉमन. x प्लस वाई माइनस 180 विल बिकम 90, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल हैव 90 माइनस x प्लस वाई माइनस 90. ओपन द ब्रैकेट्स. माइनस x माइनस y प्लस 90. So 90 plus 90 is 180 minus x minus y. QIR क्या मिला? 180 minus x minus y. और यही आपको पहले भी मिला था. QIR is 180 minus x minus y. This is equal to equation 2. Hence proved. ये जो आपको मिला है, this is same as this equation जो हमें पहले मिला था.
although the chances of these type of proof sums coming is less. Proof sums के आने के chances कम होते हैं एग्जाम में. I hope all of you have copied, so we can start with the next sum. Exam is easy. क्या दिया है हमें? In this sum they have said PA and PC are bisectors of angle BAC and ACD. मतलब ये जो PA है और PC है, they are bisectors. PA मतलब ये, this is PA, ठीक है? PA अगर bisector है, तो इसका मतलब this angle and this angle is same. Okay, let's name these angles as X, X. और PC भी बाइसेक्टर है ये, तो लेट्स नेम दिस एंगल एज Y, Y. ठीक है? But there is one more important information given, that AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. If AB is parallel to CD, tell me what type of angles are these? ये और ये कौन सा एंगल होता है? The co-interior angle. Co-interior angle. So ये जो एंगल्स है, ये दो पैरेलल लाइन से आपकी, इनके अंदर ये एंगल्स आए हैं, तो दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स. ठीक है? ये एंगल और ये एंगल, दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स. तो को-इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है? टोटल इज 180. सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स 180. एंगल ए क्या है? 2x, और एंगल सी क्या है? ये पूरा 2y equals 180. I can take 2 common here. So x plus y equals 180 upon 2. That is 90 degrees.
सो आपको मिल गया x प्लस वाई इज 90। अब आप इस ट्राइंगल का ध्यान दो, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे APC, कंसिडर दिस ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल एक एंगल x है, एक एंगल y है, और ये थर्ड एंगल है एंगल APC। ये एंगल का नाम क्या है? इसका नाम है एंगल APC। सो एंगल APC प्लस x प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्रीज। ओके, सो एंगल APC, आपको यहाँ पे जस्ट सेकेंड, x plus y की वैल्यू 90 है। सो हियर आई कैन रिप्लेस दिस x plus y with 90, करेक्ट, इक्वल्स 180। समझ रहे हैं मैंने क्या किया यहाँ पे? ये x plus y 90 है, ये मिला है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे भी x plus y है, तो इसको रिप्लेस कर दिया 90 से। सो अब एंगल APC क्या होगा? 180 minus 90 degrees, that is angle APC is 90 degrees. This is your answer. Question number 18. CE bisects angle C. CE किधर है? CE bisects angle C, मतलब एंगल C को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल सेम है. This angle and this angle is equal. Okay, let's say x x. And ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर करो. ये पूरे ट्राइंगल में
This A is 48, B is 90 and C is 2x 2x. तो हम टोटल 180 करके x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं यहाँ पे. लेट्स फाइंड इट. इन ट्राइंगल ABC, angle A plus angle B plus angle C is 180 degrees. A is 48, B is 90 and C is 2x. Solve this and find x. What is the value of x? (21 degrees). करेक्ट पक्षा. 21 डिग्रीज मिला x. तो यहाँ पे मैं इन दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देता हूँ 21 से. ठीक है. मुझे ढूंढना क्या है? DMC, मतलब ये वाला एंगल. एक ये तो मिल जाएगा DMC अभी. ये छोटा वाला ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूँ तो एक 90 है, एक 21 है, तो ये तीसरा मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, DMC ढूंढ लेते हैं. तो इन ट्राइंगल DMC, एंगल DMC प्लस 90 प्लस 21 equals 180. So find the angle DMC. (69 degrees). Very good. DMC will be 69 degrees. तो एक आंसर हमारा हो गया 69 डिग्रीज. अब ढूंढना है BEM, मतलब ये वाला एंगल. Can anyone tell me how to find this angle? BEM, मतलब ये रेड जो मैंने मार्क किया है वो एंगल. यस मेक. पैरेलल लाइंस नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं आएगा, कोई इंटीरियर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा. Sorry, sir, it was by mistake. यस वीर. So we can take B as 90 degree and then calculate whole, like 90 plus 21 plus angle CEB equal to 180 degree. अच्छा, मतलब you mean to say we will take this triangle. Yes sir. Correct, that is correct. So हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे BCE, ये ट्राइंगल. इसमें एक 21 है, एक 90 है, तो थर्ड एंगल मिल जाएगा इजीली. फाइंड करो. कुछ भी ट्राइंगल का नाम आप BC BCE कुछ भी दे सकते हो. Yes, hands are raised. Any doubt? Pakshal, Veer, make. Sir, can we take vertically opposite angles and take the smaller triangle? But if you take vertically opposite angle, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा. ओके,
फिर आप Yes. ये कैसे ढूंढोगे? Sir, it is bisects ना तो 45 degree. BD बाइसेक्ट नहीं करता, CE बाइसेक्ट करता है. Okay, sir. BD is not a bisector. Okay. Yes, Veer, any doubt? क्या मिला आपको? BEM 69 मिल गया. Correct. This is your answer. Both angles are 69 degrees. Okay. So we have completed question number 18. We are left with 7 sums now. We will do these in the next class. That's it for today. Goodbye. Thank you.